उस नाम की जय जयकार करते सुबह। उसके पहले जाइए अपने पड़ोसी को याद दिलाइए कि एक ही नाम है, यीशु नाम है। जाइए याद दिलाइए, अपने आप को याद दिलाइए कि एक ही नाम है, यीशु नाम है, सबसे ऊपर एक ही नाम है। आई थाली पे जाता है उसके लिए धन्यवाद करते सुबह प्रभु। आपके पास आते हैं प्रभु, आपके नाम को चौटाने के लिए। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुआ। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की पूरे विश्वास से। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुआई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। यीशुआ यीशुआ तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम में हम पाते हैं नजात। केवल आपके नाम में यीशु मसीह। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरा नाम, तेरे नाम में हम पाते हैं यीशुआ। यस लॉर्ड, आपके नाम में चंगाई है प्रभु, आपके नाम में रिहाई है यीशु मसीह, क्योंकि सत्य मार्ग जीवन आप हो यीशु मसीह। धन्यवाद देते उस नाम के लिए प्रभु, आप जो स्वयं इस धरती पे हमारे लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। यस लॉर्ड, we thank you Lord Jesus this morning, O Lord,
for your name, O Lord. Because you are way, truth, and life, Lord Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Yes, Lord, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. ये आपके वचन कहते हैं प्रभु. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sing, you are Waymaker. Yes, Lord. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Sing, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. पूरे विश्वास के सारे मिलके गाते हैं. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never Yes, stop. Lord. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop
Your promises are yes and amen, O Lord Jesus. That's why we sing, O Lord, we give praise, O Lord, because you deserve glory, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Let's give him glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord. महिमा आदर की योग्य तू है। अपने हाथों को उठाकर सजदा हम करते हैं। महिमा आदर केवल आप योग्य हो, योग्य तू है। अपने हाथों को उठाकर सजदा हम करते कि तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, तू करता अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। Yes, Lord. आराधना हम करते पूरे दिल और मन से। तेरी महिमा गाते हैं सारे मिलके। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। तेरी महिमा का
आप योग्य प्रभु। प्रभु हम चाहते परमेश्वर कि आप बड़े प्रभु और हम घटे परमेश्वर। इस जगह पे परमेश्वर आपके पास आते प्रभु, आपसे सुनने के लिए प्रभु, आपसे ग्रहण करने के लिए प्रभु, आप बातें करना परमेश्वर, आप छूना अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह। केवल एक ही नाम है, यीशु नाम है जिससे हमें उद्धार मिले। धन्यवाद करता प्रभु, धन्यवाद करते सुबह। आगे का समय आपके हाथों में रहती इस छोटी सी प्रार्थना को एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, सभी को जय मसीह की। सभी का स्वागत है आज के कलीसिया में। हमारे बीच में कोई अगर पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। आपका स्वागत है। हमारे एशर आपको कुछ बुक्स और कुछ ट्रैक्स देंगे, उसके ऊपर आपको कुछ डिटेल्स आपको भर के हमें रिटर्न्स देना है। बैठ सकते हैं आप। हमारे बीच में अगर कोई दूसरी बार है तो भी आप अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। हमें कोई ऑनलाइन अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहा है, पहली बार या दूसरी बार है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग आपसे परमेश्वर की महिमा जुड़े रहें। हम स्वागत करते हैं भोसले परिवार का जो आज हमारे साथ है। आइए हम देखते हैं अपकमिंग इवेंट्स। 14 और 15 मार्च को फैमिली कैंप है, तो उस कैंप में यदि कोई अगर जुड़ना चाहते हो तो हमें बता सकते हैं। ये कैंप का सिंगल प्राइस है 1800 एडल्ट्स का, और 5 से 9 एज के जो बच्चे हैं उनको 1150 है। और यहाँ जाने के लिए बस अवेलेबल है नहीं, तो आप अपना खुद का व्हीकल और ट्रेन से आ सकते हैं। अगर यदि किसी को ट्रेन की टिकट भी बुक्स करना है तो आप हमें भी बता सकते हैं, या आप पर्सनल भी आ सकते हैं। अद्भुत समय होगा, हम लोग एंजॉय करेंगे, परमेश्वर के वचन शेयर होंगे, गेम्स खेलेंगे, काफ़ी समय अद्भुत होगा हमारे लिए। अप्रैल मंथ में 6 से 11 बिलासपुर मिशन ट्रिप है,
अगर अभी भी कोई अगर जुड़ना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, टिकट्स निकल चुकी है। अगर कोई किसी को इंटरेस्ट है, अगर कोई आना चाहता है तो आज सभा खत्म होने के बाद में बता सकते हैं। 22 और 25 मई को कॉन्फ्रेंस होगा अंधेरी में। यदि अगर उस कॉन्फ्रेंस में कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। सभा खत्म होने के बाद में आपके नाम लिखे जाएंगे और जो भी फीस होगा आपको व्हाट्सएप द्वारा या बताया जाएगा। आइए हम शेड्यूल देखते हैं। जैसे बाइबल क्लास शुरू हुआ है, रविवार को जैसे सभा खत्म हो जाती है यहाँ पे, तो बाइबल एक क्लास होगा रविवार को सभा खत्म होने के बाद में। सिद्धांतों का सर्वशन भाग 1 जो नितिन भाई हमें पढ़ाएंगे। मंगलवार को क्लास होगी, 2 क्लास है मंगलवार को शाम को 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक। जो पहला क्लास होगी वो बंदी ग्रह की पत्रियाँ होगी जो रॉबिन ब्रदर सिखाएंगे। वो शाम को स्टार्ट होगी 7:30 बजे से 8:30 बजे। और वो क्लास खत्म होने के बाद में तुरंत स्टार्ट हो जाएगा बाइबल के महान पुरुष और महिलाएं जो पास्टर धर्मेश लेंगे। उसके बाद में गुरुवार को एबीडी क्लास होगा, वीडियो के माध्यम से वीडियो क्लास होगा और रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होगा। उसका भी एड्रेस आपको ग्रुप पे दिया जाएगा। अगर कोई क्लास में अभी भी सहभागी होना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस प्रति एक क्लास का 200 है। अगर आप 3 क्लास लेते हो तो 500 है। अगर आप पूरी की पूरी क्लास लेते हैं तो आपको 600 में मिल जाएगा। गुरुवार के दिन आउटरीच होता है वाशी में शाम को। अगर कोई वाशी में शाम को आउटरीच में अगर जुड़ना चाहते हैं तो पास्टर धर्मेश से आप संपर्क कर सकते हैं। और खारगर में बाइबल स्टडी होता है शाम को। अगर इसमें भी कोई जुड़ना चाहते हैं तो रॉबिन भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेडीज टाइम का जो भी होगा महिलाओं को अपने ग्रुप के माध्यम से बताया जाएगा सैटरडे का। हम ऑफरिंग के लिए देखते हैं। अगर कोई ऑनलाइन ऑफरिंग देना है, दान देना है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर IFC कोड है, हम देख सकते हैं। हम ऑफरिंग के लिए प्रे करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता। आज का दिन आपने दिया इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जो लोग भी परमेश्वर पिता आपको दान दे परमेश्वर पिता, उनके घरों में उनके कामों में आशीष देना, बरकता देना परमेश्वर पिता। उनके घरों में या कभी किसी चीज़ की कभी कमिटी महसूस ना होने देना परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी एक आज्ञा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता हमें इस काबिल बनाया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। इस सभा को भी आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। आने वाले सॉन्ग को, मैसेज को भी आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर पिता। आप चलाना परमेश्वर पिता। छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। चेक। जब होता मैं कमजोर, डर का जब होता शोर, महिमा तेरी होती प्रबल। दर्द जब लगता असीम, तेरे नाम से होती जीत, ताकत मेरी है सिर्फ तू। जब होता मैं कमजोर, डर का जब होता शोर, महिमा तेरी होती प्रबल। दर्द जब लगता असीम, तेरे नाम से होती जीत, ताकत मेरी है सिर्फ तू। तू ही पाक है खुदा,
सर्वदा मेरे जीवन से पाए तू महिमा। तू ही पाक पाक ऐ खुदा, तारीफे काबिल नाम तेरा। जीवन से मेरे महके तू, ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा रहे तेरा नाम। चेक ओके या जय मसीह की यस ग्रेट हालेलुया हालेलुया यस राइट ना कई बार आवाज करना अच्छा रहता है सो ग्रेट यस सो हमारे बीच में सीमा सिस्टर अखिलेश ब्रदर और उनके पिताजी हमारे बीच में उनका स्वागत करते हैं। So we have Seema sister, Akhilesh brother and his father among us. और भोसले परिवार हमारे बीच में And Bhosle family is also there with us. खास अवसर पे And this is a very special occasion, I suppose. और हमारे बीच में रिचर्ड के माता पिता भी है। And Richard's parents are also there among us. थैंक यू आने के लिए। Yeah, so we welcome them. सो हम अपने स्थान पे खड़े होते हैं Please stand in our places. और वचन पढ़ेंगे। और आप सभी का आने के लिए धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कि आपको यहाँ पर लाया। And I thank God that He has brought you here. उसका अनुग्रह है। And it is His grace. सो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो अपने स्थान पे पढ़ सकते हैं बाइबल लेके। So those who read in English can read and in their places in English. मैं हिंदी में पढ़ूंगा। Pastor will read in Hindi. उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 18 से 25। And it will be Genesis 2:18 to 25. सो हमने लास्ट टाइम भी कुछ बातें कही शादी के ऊपर। Last time also I spoke a few things about the about marriages. और उसके पहले रहे सो कुछ लोग कि कुछ लोग की शादी हुई है और कुछ लोग की नहीं हुई है। So we have people who are married here and people who are not married here कुछ also. लोगों की शादी होगी। And some people are going to get married. Right. और हम कुछ हिस्से जब हम सीखते हैं And when we learn a few things, और हर बार उस पैसेज पे आते हैं जहाँ पे परमेश्वर बातें करता है। and we always come to a passage where God speaks to us. क्या परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से हमारे परिवार से क्या चीजें हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। And what are the things we can give to other people through our lives? उसके पहले हम एक दूसरे के साथ उस संबंध में कितना अधिक चल सकते हैं वो जरूरी है। But before that, we have to see how much can we walk with each other in that relationship. और उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 18 से 25 हम पढ़ते हैं। And Genesis 2:18 to 25 we will read. बोलता है फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेल पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेल पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए
कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों की हड्डी और मांस में का मांस है, इसलिए इसका नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। उत्पत्ति का पहला अध्याय And then we go to Genesis 1, और 26वीं पंक्ति से, 26th verse. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुसार उत्पन्न किया, और स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। सो प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए, Father God, we thank you for these amazing words, O Lord. जो तेरी योजना है, And which is your plan, O Lord. जो हर एक पिता परमेश्वर जाति के लिए तेरी एक योजना है, For every tribe, O Lord, this is your plan, O Lord. कि हर वो नर नारी That every single man and woman जो चुने गए एक साथ बंधन में बनने के लिए, and who have been chosen to be put together in a relationship, कि उस परिवार को आप चाहते हो, and you want that family, O Lord, क्योंकि आदम को आपने अकेला नहीं छोड़ा, because you didn't leave Adam alone, उसको सहायक दिया you gave him a helper, और तेरी आशीष दी। and you blessed them, O Lord. धन्यवाद करते हैं We परमेश्वर, thank you, Lord, और इस रचना के लिए and for this creation, O Lord, जो आज हम यहाँ पर है, so that we are here, O Lord. और वो ही तेरा आशीष है जो ये कहता है जैसे आदम को आपने आशीष दिया, And the way you blessed Adam, you have blessed us, O Lord. और आज हम इस जगह पे रहकर हम आपको जान सकते हैं। And we, in this place, O Lord, we can come to know you, O Lord. धन्यवाद करते हैं। We thank you, Lord. मेरी मदद करना और हम सबकी मदद करना, Help us all, help me, कि हम इस वचन को सुने, that we would listen to this word इस वचन को आज्ञा पालन करें, and be able to obey it, और इस वचन के द्वारा अनुसार ही हम अपने परिवार के पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाएं, and so that we may go ahead in our family lives according to this word, O Lord. जैसे तूने कहा है। The way you said, O Lord. पवित्र आत्मा की सामर्थ में मदद करना, And help us in the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह के नाम से आमेन। In Jesus' name we pray. आप लोग Amen. बैठ सकते हैं। Please be seated. सो ग्रेट। सो जैसे हमने इन वचनों को पढ़ा And as we read these words, ना, आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने, God made Adam and Eve, ना जहाँ पे उसने एक परिवार बनाया, and He made a family there. ना जैसे आदम को उसने बनाया तो आदम को उसने अकेला नहीं छोड़ा, And He created Adam and didn't leave him alone. ना, क्योंकि उसके लिए एक ऐसा कंपेटिटर, ना ऐसा एक सहायक बनाया जो And he- उससे मेल खाता हो। And He made a helper for him who was suitable for him. और एक चीज जो परमेश्वर ने की, And another thing which God did, उसने अपने स्वरूप अपने समानता में, राइट, आदम को बनाया और उनकी रचना की। and He made Adam in His own image and He created him. ना आओ हम उन्हें बनाए, And the word says that come, let's create them. ना पंछियों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, बोल के बनाया, And God made birds and hills and mountains, and He spoke and it was made. लेकिन जब मनुष्य की बारी आती है, But when it came to human beings, ना बोलते हैं, आओ हम बनाए। so it says, come, let's create. पता है ये रचना उसकी छुई हुई है, So this creation has been touched by Him. राइट, उस श्वास उसका दिया हुआ है, The breath has been given by Him. और आज हम इस धरती पे उसकी समानता में उसके साथ उसको
जी सकते हैं। And we are able to live on this earth in His image and it's similar to Him. हम उसे समझ सकने की उसकी क्षमता को हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, And the Holy Spirit has given us the capability to understand Him ना कि हम उसे जान सके। so that we'll be able to ना know इस Him. मिट्टी को उसने छुआ और वो जीवित प्राण, ना उसका श्वास फूका और वो जीवित प्राण बन गया। And He made us from this mud and He breathed His life into us. ना हम सभी परमेश्वर की रचना है, We are all His creations. ना कोई ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली रेड ना उसने कह दिया वो चीजें, राइट, कहने से बहुत सारी चीजें बन गई। And just by His word so many things were made. ना 6 दिन में उसने सारी चीजें बनाए In 6 days He made everything. ना, लेकिन 6वें दिन जो था आदम को बनाया, राइट, But on the 6th day He made और Adam. उसके साथ हव्वा भी, राइट, And Eve was, He made त्रिएकता Eve also. शामिल है And so there is Trinity there, ना, ट्रिनिटी जहाँ पे पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है where we see the Father, the Son, and the Holy Spirit. ना, और देख सकते हैं वो हर उस परिवार में शामिल है जिसमें वो चाहता है कि मैं इस परिवार में रहूं। And He is present in all the families where He wants to be. ना, बाय द वे देख सकते हैं वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा है, बाय द वे And He's standing at the वो door. आना चाहता है घर में, And He wants to enter. वो परिवार में आना चाहता He है, wants to enter the वो family. संगति करना चाहता He है, wants to have fellowship. लेकिन त्रिएकता उसमें है And Trinity is right ना। बाय द there. वे पहला चमत्कार कहाँ किया यीशु मसीह ने, What was the first miracle He performed? राइट, काना में, He did it in जहाँ Cana, पे शादी हो रही थी where there was a wedding taking ना। place. अद्भुत अद्भुत चीजें हैं जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस संबंध में जीना चाहता हूँ और उस परिवार में जीना चाहता हूँ। Because God is telling that I want to live in a relationship and I want to live in a family. उसने आदम और हव्वा को बना के एक परिवार बनाया और वहां से शुरुआत की। And He made Adam and Eve and He made them into a family and He started from there. और अच्छा है ना, नए नियम में हम आते हैं यूहन्ना का अध्याय में, पहली शादी, राइट, परिवार के साथ उसने अपना चमत्कार शुरुआत करता है। And even His miracles He started, as we know in John, He started with a wedding, His ना, first miracle. एक संबंध का बात कर रहा है So He's talking about a relationship. ना, एक स्त्री और पुरुष का एक संबंध कैसा होना चाहिए How should a man and a woman be related? और वो संबंध उसके पिता के बारे में और हमारे बारे में भी बात करता है। And it's the same thing where father and our relationship is talked और about. वो दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, उसके संबंध के बारे में बात करता है And it's the relationship of a bridegroom and a bride. ना। जब हम इस संबंध में जीते, कई सारी कठिनाइयाँ आती है, कई सारे ना, क्या बोलते हैं ना, वाद विवाद होते हैं कई बार। So it is difficult to live in this relationship because when we live there might be arguments among us. लेकिन कहाँ पे आके हम उसको क्या है उन संबंध को लेकर जा सकते हैं, But where can we take this relationship? वो है परमेश्वर की उस उपस्थिति में And we can take it to God's presence, ना, जहाँ पे वो उन संबंधों के साथ हमारे साथ जीना चाहता है where He wants to live in a relationship with us. ना। इफिसियों का 5वां अध्याय 31 और 32 ना, 31-32 जहाँ पे वो बात करता है कलीसिया के बारे में And in Ephesians 5:31 and 32, he talks about the church there. ना। पहले वो पति पत्नी की बात कर रहा है, वहां पे बोलता है वो दोनों एक होंगे और यही बड़ा भेद है जो कलीसिया के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। And that is what he says, that I'm talking about a husband and a wife, and this is the mystery which I want to talk about, the church and Christ. ना, एक ऐसा संबंध जो हमारा और प्रभु यीशु मसीह का है And it is that relationship which is ours, which is between us and Jesus और Christ. वही उदाहरण दे के वो एक परिवार को भी दिखा रहा है And he's giving an example of a family. ना। जब पौलुस से वो बात कर रहा है इफिशियंस में And in Ephesians, when he's talking to Paul, ना, मैं इस परिवार के बारे में क्यों बातें कर रहा हूँ, why am I talking about a family here? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे आगे एक आदर्श रखा है Because I have put an example in front of you. ना। मैं अपनी दुल्हन को पाने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरा हूँ And I have done so many things to get to receive my bride. ना। यीशु मसीह बोस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह ये बता रहा है कि वो संबंध कितना निराला है, वो संबंध कितना गहरा है। And he is not boasting, but he's telling how amazing and how unique this relationship is. बोलता है वही विषय में मैं आपको बता रहा हूँ जो कलीसिया के विषय में है। And that is what I am telling you. It's about the church. और ये इसलिए है कि वो हम
राइट परिवार में भी उस संबंध को जी सके। And this is because we can live that same relationship in our families also. पतियों को क्या बोला? What did he tell husbands? क्या बोला? पत्नियां बोल सकती है, Love your wives. हाँ? राइट, पत्नियां बोल सकती है, राइट ना, पति भी बोल सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा ना, ये पतियों तुम अपने पत्नियों से प्रेम रखो, So जैसा husbands, love your wives. जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा, The way Christ loved his राइट, church. जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है, The way Jesus loved his church. राइट। और पत्नियों को क्या बोला है? What did he tell the wives? ना अधीन रहने की बात करता है, And he talked about submission here. ना एक दूसरे के लिए बनाया वैसे वे, And God has made them for each other. ना ये नहीं कि भाई तुलना करने के लिए, It's not to compare. ना देखो परमेश्वर ने क्या बोला है, And see what God has said. ना तुलना नहीं कर रहे हो आप, He is not comparing here. बल्कि वो एक दूसरे के सहायक है, They each other's supporters ना एक actually. दूसरे के लिए वो एक हो जाते हैं। And they become one. ना जब एक बार कॉन्फ्रेंस से आए थे, लता दीदी आई थी एक बार, So जो once I remember Lata had हम come, लोग Lata बाइबल Didi, कॉलेज में बात कर रहे थे, and we were talking about something. एक पास्टर ने वो शेयर किया था A pastor had shared something कि कैसे वो एक हो जाते हैं। that how they become one. ना जब उस परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, When a child is born in the family बोलो ये दोनों शादीशुदा है and both of them are married और उसके परिवार में बच्चा पैदा होता है, and a child is born in the family, ये दोनों उस राइट वो बच्चा उस उनका राइट उनका स्वरूप उनके जैसा है and the child is like them. ना, इन दोनों से वो एक हो गए, राइट। So from two they became वो one. देखते हैं कितना खूबसूरत वो पिक्चर हो सकता है देखने How में। beautiful this picture can be to ना see. लाइक क्या बोलता है, एक दूसरे की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। And they are actually not comparing or actually competing with each other, but are complementing each other. ना कौन बड़ा है, ना मैं इधर अधिकार रखता हूँ, तुम मेरे अधिकार के नीचे हो, That I have the authority, you are under my नहीं authority. वैसा नहीं है, It's not like that. बल्कि वो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। But they have been made for each other. ना यहाँ पे होता है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, And when God saw, he said, it's not good for Adam to be alone. ना बल्कि उसके लिए एक सहायक बनाया, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना अधूरे है। Because they were incomplete without each other, so he made a helper for them. ना उसका एक हिस्सा है उसके जीवन में, And so there is a part in ना this, एक his दूसरे life. का, राइट। For each other we have a part. कि कई बार ऐसे होता है कि अकेला भी रह जाता है इंसान, Many times a person is left alone ना उसके लिए गॉड का कॉल वैसा रहता है, बुलाहट वैसी रहती है। because God has that specific calling for that ना ऐसा person. नहीं कि परमेश्वर ने उसके लिए नहीं बनाया है, It's not that God didn't make someone for उसकी बुलाहट वैसी है तो वो अकेला रह जाता है। and because his calling is such or her calling is such, लेकिन he is परमेश्वर left ने alone. कभी किसी को अकेला रहने के लिए नहीं बुलाया। But God has never called anyone to be alone. यदि वो सोच रहा है तो शादी कर सकता है, राइट। If they are thinking, they can get married. ना कॉलिंग है, परमेश्वर ने वैसे ही बनाया है। God has made them like that. ना, कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम गुप्त बातें हैं जो क्या है परमेश्वर की है। Because there are some mysteries which belong only to God. हेवन में जाने के बाद सवाल पूछ सकते हैं We can always ask these questions once we go to heaven. ना, जब अकेला रहेगा तो उसका जो साथी है वो कहाँ पे था That if I was left alone, where was my partner? ना। कई बार चीजें हैं हम सवाल करते हैं कई बार, And we can ask these questions. लेकिन आने वाले समय में हम देख सकते हैं इन चीजों को So in the coming times, we can see these things. ना, क्योंकि कई बार चीजें हैं शादी के बाद पता चलता है कुछ चीजें, There are a few things which we come to know only after our marriage. लेकिन शादी में क्यों समस्याएं पैदा होती है But why do problems happen in marriages? ना। कई बार जो बातचीत की कमी होने की वजह से, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, Many times it is because of lack of communication. ना कई बार चीजें है कि मैं एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहा हूँ, राइट। कई बार पति या पत्नी में ना पति के बारे में जो सोच है अलग है और पत्नी की सोच पति के बारे में अलग है।
So it might be because of unmet expectations that the husband thought about wife something else and the wife thought about husband something else. ना समझ नहीं होने के कारण वो चीजें क्या है उन समस्याओं को जन्म देती है। And lack of understanding actually breeds these problems. अरे मैंने तो सोचा था मेरा पति ऐसा होना चाहिए था। I thought my husband is going to be like that. पति कह रहा है मेरी पत्नी को ऐसा होना चाहिए, मैंने तो वैसा सोचा था, कुछ और ही निकल गया, राइट? And the husband thinks likewise and he says it's something different. अरे हमारे जीवन में, राइट, पास्टर बिनू ने एक बार बोला मार्था और मरियम दोनों चाहिए। And Pastor Binu had said that in our lives we want both Martha as well as Maryam. उनको सवाल पूछा तो कैसी पत्नी चाहिए? Because someone asked him that what kind of wife should we have. ना मार्था और मरियम जैसे। So he said someone who would be like Martha as well as Mary. कई बार स्त्रियों की या मतलब पुरुष की क्या है उम्मीदें, राइट, अपेक्षा ज्यादा होती है Many times there are higher expectations on both the sides. कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए। That my husband should be like this. ना कभी देखा है उन चीजों को, ना समझो रेड ग्लास है, So if there is a कांच glass का ग्लास है, and it's a glass tumbler, है ना, कांच का ग्लास है और कई जगह पे रेड रेड चीजें है, माइक है even for example this mic, ना, ये सारी चीजें अलग है and they are all different. ना, कांच को छोड़ दो फूट जाएगा If we leave the glass tumbler, it will break ना, एक दूसरे का काम अलग अलग है because both have different functions. ना, ग्लास में मैं पानी पी सकता हूँ I can drink water out of that tumbler. ना, माइक से पानी नहीं पी सकता I cannot drink water from this mic ना, वो अलग है काम, right? because it's a different ना, function. एक दूसरे के साथ हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि वो भी वो करे जो मैं कर रहा हूँ So we have similar expectations that what we are doing that the other person should do. ना, कोई मजबूत होता है और कोई कमजोर है, A person could be strong, the other could be weak. लेकिन एक दूसरे में फर्क है, But there is a difference in both. लेकिन एक दूसरे को पूरा करते हैं Though they are compatible, ना, ऐसा नहीं कि किसी को ना कम बनाया और किसी को ऊंचा बनाया। so they complement each other. It's not that someone was created lower and the other higher. जैसे इसका एक खास उद्देश्य है As this thing has a special ना, माइक purpose. का खास उद्देश्य है, मैं इसमें से बात कर सकता हूँ, आप तक बात पहुँचती है As I am talking, it reaches you. ना, वैसे ही उसका, राइट, एक दूसरे के लिए खास उद्देश्य है बनाने का। Similarly, we also have special purpose ग्लास में से पानी पी सकते हैं, वही खास उद्देश्य है। because we can drink water out of that tumbler because that's the purpose it is made for. और जब हम इसे समझते हैं, And when we start understanding मैं that, समझता हूँ कि या मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो साथी है वैसा है, तो मुझे कैसे उसके साथ जीवन व्यापन करना है। so then I start understanding that how my partner is created and the way I should spend my life with तभी him. हम एक दूसरे के साथ उस आनंद में और प्रोत्साहन करते हुए जीवन जी सकते हैं। And then only we can live a life together, encouraging each other and enjoy. लेकिन क्यों समस्याओं का और मूल कारण क्या है? But what is the basic reason for problems? मूल कारण है जो, राइट, जहाँ से ये शुरुआत होती है, And what is the root cause of this problem where it starts? शैतान, It's Satan जिसने क्या है पाप लेकर आया। who brought sin into this वो world. चाहता ही था कि कैसे मैं परमेश्वर की इस परिवार को तोड़ूं, And he wanted to break this family created by God. कैसे इस योजना को बिगाड़ दूं, And how do I spoil this plan? ना कैसे मैं इस योजना को ना गलत डायरेक्शन में लेकर And जाऊं। how do I take this plan in a different direction altogether? लेकिन परमेश्वर की योजना अलग है But God's plan is different. ना, लेकिन शैतान क्या करता है उस शादी को बिगाड़ने में, ताकि वो परमेश्वर की योजना को बिगाड़ सके And he wants to spoil a marriage because he wants to spoil God's plan, ना, जहाँ पे वो परिवार के बीच में क्या है कार्य करता है। where he works in the family. हव्वा बहकाई गई Eve was deceived. ना, पहला तिमुथियुस का 2:13, And we read 1 Timothy 2:13. लेकिन हव्वा बहकाई गई, राइट, जहाँ पे बोलता है And it says that she was deceived. पाप में कौन गिरा? Who fell into sin? ना वो स्त्री, It was the woman. ना दोष किस पे लगा रहे? And who was accused? ना आज सुबह ही दोष लगा रहे थे। So this morning there was a blame going on.
नहीं मतलब मजाक की बात है, जो समझता है वो समझ नहीं मतलब इसने दिया, राइट that this person ना, gave. परमेश्वर तूने इसे दिया है और इसके वजह से मैं पाप में गिर गया। And God, you gave this person, and that's why I fell मैं into बोला sin. अभी आएगा मैसेज भी वही आ रहा है। And I was thinking the message is also ना similar. जिम्मेदार किसको ठहराया बाय द वे? So who was held responsible? ना पुरुष को, And it was the man who was held ना बाय द वे responsible. हमने ना लास्ट टाइम, क्योंकि कई बार ये चीजें सुनना जरूरी है हमें। And many times to listen to these things is so important ना for us. हे आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? Adam, where are you? ना जिम्मेदारी समझना जरूरी है। To understand our responsibility is important. ना एक जिम्मेदार बनाता है पुरुष को, It makes a man responsible. और स्त्री क्या है? And what is a woman? सहायता है, Is the helper or the ना supporter. सहायक दी गई है। And she has been given as a helper. ना लड़का लड़की जब पसंद करते हैं, A boy and a girl, when they like each other, पहला कौन पहल करता है? who proposes first? पहला लड़का करना चाहिए It should always be the boy. ना, लेकिन शादी के लिए बाय द वे, That is for a wedding, ना जहाँ for पे marriage. नहीं तो शैतान की तरह वो भी क्या है, वो चीजों को समझ नहीं पाएगा। नहीं तो Otherwise, he also won't be able to understand. प्रति उत्तर करने वाला कौन है? लड़की है And who is the responder? It's the woman or the girl. ना। शैतान ने हव्वा को प्रलोभन दिया बाय द वे, And we know that Satan gave or tempted लेकिन Eve, जिम्मेदार आदम बना। but Adam was held responsible. रोमियो का 5वां अध्याय If we go to Romans 5, ना, जहाँ पे आदम अगुवाई करता है and where Adam leads, और स्त्री क्या है, उसके अधीन रहती है and the woman is submitted to him. ना, जहाँ पे ना, क्योंकि पाप जहाँ पे आ गया Wherever sin entered, ना, सारी चीजें गलत हो जाती है everything goes wrong. ना। जहाँ पे परमेश्वर के उस परिवार में तकलीफें देखते हैं हम And we see in God's family there are problems and there are troubles. ना, जहाँ पे पुरुष और स्त्री एक दूसरे को ना समझने के कारण, कमियों के कारण उन चीजों को क्या है हम देखते हैं। And it's because of lack of understanding or not understanding each other gives rise to these problems. ना कई बार शादियों का जो बारे में कई बार गलत चीजों को लेकर आया पाप। And wrong things were brought because of sin in marriages. कितनी शादी करनी चाहिए एक पुरुष को? How many marriages should a man go through? एक, राइट ना। बाइबल उसकी One. आज्ञा नहीं देता, 4 5, राइट। Bible बहुत सारे doesn't ऐसे allow. बाइबल में हम कई बार सोचते हैं उसके पास जाते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने उसको अलाउ नहीं किया है। And it is not, when we go to the Bible, it is not endorsed by God anywhere. बहुत सारे लोगों ने की बाय द वे 4 5 शादियां की है Many people married 3 or 4 times. ना, लेकिन 5 times. परमेश्वर कहीं पर भी इस संबंध को अलाउ नहीं करता। But God doesn't allow this kind of relationship. इवन सामरी स्त्री आती है, वहां पे बोलते हैं राइट तेरे 5 पति, राइट, वहां पे भी वो एड्रेस करता है बाय द वे And even when with the Samaritan woman, he addresses this issue. ना, जहाँ पे सिर्फ एक ही पति है And only one husband. और एक ही सेटिस्फेक्शन लाइफ है। And there is only one satisfactory अगर life. मैं ज्यादा ढूंढ रहा हूँ तो मेरे अंदर प्रॉब्लम है If I am looking too much, that means I have a problem in me. ना, और प्रभु कभी भी इस संबंधों को अगुवाई नहीं करता। And God doesn't lead to such ना, relationships. एक बार हमारे पास एक जगह पे मतलब एक व्यक्ति आया, बोलता है मेरी 2 शादियां हो चुकी है। And I remember a man came to us and he said, I've been married twice. हमारा विजिट भी करते थे पास्टर बीनू और मैं, उनको विजिट भी करते थे। And we used to visit them, Pastor Binu and I. लेकिन कई बार हमको बोलना पड़ता था। पास्टर बीनू कई बार एक बार बोल दिया उसने And once Pastor Binu told him that. कि ये शादी गलत है जो तुमने दूसरी की है, And he said that the second marriage which you have gone through is वो wrong. तुमको कभी ब्लेस नहीं करेगी। It will never ever bless you. वो बोलता नहीं है, मेरी पत्नी और उसके बीच में संबंध अच्छा है, No, I have a good relationship with my wife, he लेकिन said. बाद में आगे चल के वो ना और चीजों में क्या है संबंध बिगड़ गया उसका। But this relationship really got spoiled when ये after हुआ, some time. हमारे सामने हुआ, जहाँ पे पास्टर ने एड्रेस किया उसको We saw it happening and pastor had addressed it. ना, जहाँ पे जरूरी नहीं था वो। And which was not उत्पत्ति का really 4 अध्याय necessary. 23वीं पंक्ति, Which one, pastor? उत्पत्ति का 4 अध्याय 23वीं पंक्ति, Genesis 4:23, जहाँ पे लेमेक की 2 पत्नियां हैं,
where we see Lamech who has 2 wives. ना 2 शादियां दिखाई गई है So here we see 2 marriages. ना, जहाँ पे परमेश्वर इसको भी अलाउ नहीं कर, कहीं पर भी बोला नहीं गॉड ने कि भाई अच्छा है ना 2 शादी किया है And nowhere did God say that it's good that you married twice. ना। कई बार तलाक के बारे में हम देखते हैं इस दुनिया में And many a times we see divorces in the world. ना। कहने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें, Why am I saying all these things? परमेश्वर ने केवल एक ही साथी दिया है, That God has given only one mate उसके साथ बने रहो। and continue to abide with that कई बार mate. तलाक उस योजना का राइट जो हिस्सा नहीं है वो तलाक भी बीच में आ जाता है And many times a divorce come in between which was not in the plan at all. ना। कई बार दुख की बात होती है कि तलाक लेते हैं लोग, And many times people take divorce क्योंकि वो संबंध को समझते नहीं है। because they don't understand that relationship. या कहीं पर भी रहो राइट, उसके साथ बने रहो So wherever you are, you abide with it ना, एक दूसरे के साथ बने रहो and with each other ना। परमेश्वर ने ये योजना बनाई है brother। because that is God's plan and He has made it. कई बार समस्या ये भी होती है कि ना एक व्यक्ति क्या है शादीशुदा होते हुए भी दूसरे पराई स्त्रियों से संबंध रखता है And there are times when a married man has a relationship with other women. ना। सोचो वो वचन क्या हुए जब जिस दिन शादी के संबंध में उस समय उसने लिए थे And just imagine what happened to the vows which he had taken on the day of ना। मैं marriage. इसका दुख में, इसका सुख में, मैं इसके हर एक चीज में क्या उसका सहायक हूँगा। That I will be with her in everything, in trouble and in joy and everything. शादी के बाद दूसरा स्त्री के साथ संबंध है And then after marriage he has a relation with other woman. ना। बाय द वे ये सारी चीजें किससे पैदा होती है And what were these things born out ना? of? पाप के वजह से। These are born out अगर of sin. इब्रानियों की अध्याय 13वां अध्याय में आप पढ़ते हैं If we go to Hebrews 13, we see, ना, वहाँ पे बोलता है, and it says there, अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 13वां अध्याय Hebrews 13, बोलता है कि 4th पंक्ति it's the 4th verse. बोलता है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। Marriage is honorable among all. क्या है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। So marriage is honorable बोलता है और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे and the bed undefiled. और क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परगामियों स्त्रियों का न्याय करेगा। But fornicators and adulterers God will judge. ना, यहाँ पे न्याय किया जाएगा बाय द वे। So they will be given justice or they will be क्योंकि मसीह जीवन वैसे जीने का नाम नहीं है because Christian life cannot be lived like that. ना। शैतान इन चीजों को लेकर आता है Satan brings these things. ना, प्रलोभन लेकर आता है He brings temptations. और समलैंगिकता का एक जीवन भी क्या है जिसको अलाउ करते हैं लोग इस दुनिया में And this world allows even homosexuality ना, जहाँ पे वो खराब कर रहा है उस संबंधों को बिगाड़ रहा है। and which is spoiling the relationship. क्या होता है लड़का लड़के के साथ रहेगा तो लड़की लड़की के साथ रहेगी तो What will happen if a man is with a man and a woman with a woman ना भाई शादी अलाउड कर देते हैं and marriage is allowed between them ना। कई बार ये चीजें हम देखते हैं and we see those things ना। बाय द वे ये सारी चीजें इस दुनिया में हो रही है बाय द वे, and these things are already happening लेकिन in this world. परमेश्वर इन चीजों को अलाउ नहीं करता है Though God doesn't allow or endorse these और things हर विश्वासी जीवन को इसमें सतर्क रहना जरूरी है। and every believer should be alert about these things और कई बार इस जगह पे ना आदमी सोचता है and a person thinks about these कि things मैं महसूस करता हूँ अपने अंदर ना लड़की के जैसा। कई बार ये चीजें देखते हैं हम and we see that a man starts feeling like a woman from inside ना। वो रील्स बनाते कई बार ना, चीजें वीडियो पे देखते कई बार and we see such videos and reels ना, जो लड़की के जैसा बनते हैं अपने आप को दिखा रहे हैं। and they dress up like a woman and they act like a woman. अच्छा है अमेरिका में अभी वो बंद कर दिया रे So it's good that in America it has been ना। stopped. पहले तीनों था ना, क्या जेंट्स लेडीज और थर्ड वाला जेंडर, 3 जेंडर है। Yeah. तीन हाँ? Others. 3 जेंडर Yeah. राइट, ट्रांसजेंडर यस। Yeah, so in America तीन थे। earlier there were 3 genders, man, लेकिन अभी woman क्या and है, अभी 2 ही रखे, now only 2 have been kept, पुरुष या स्त्री either man or a woman. राइट। और वो चीजें देख सकते हैं कितना अद्भुत है कि या वो उस जगह पे कि वो अलाउ नहीं कर रहे उन चीजों को And it's amazing that they are not allowing these things there. ना। ये चीजें बहुत
मूल्य रखती है by the way। and they have a great ना value. एक परिवार को बनाए रखने के मूल्य कहा जाएगा And जिसे। these values keep a family और together. परमेश्वर ने परिवार बनाया तो परिवार के मूल्य भी है Because if God has made a family, He has given values to each family. ना। प्रभु उस योजना में वो कार्य करना चाहता है, And God wants us to work according to that लेकिन शैतान plan. क्या उस योजना को तोड़ना चाहता है But Satan wants to break or spoil that plan ताकि सुसमाचार ना फैले, so that the gospel will not spread, ताकि कोई लोग बचाए ना जाए so that people will not be saved. ना। एक परिवार टूटता है तो बहुत सारी चीजें टूटती है Because if a family breaks, many things break. और वो परिवार पर आक्रमण करता है। And he attacks the family. इसलिए अपने परिवार के साथ उसमें बने रहना बहुत जरूरी So it है is very important to continue to ना। abide with लोग your कुछ family. बातों को बाइबल के सहमत होते हैं by the way। And people who read the Bible agree with it ना थोड़ा थोड़ा रहे, a little bit, लेकिन वो थोड़ा फिर मुड़ जाते हैं but they move aside ना। after some फिर time. वो उस जगह पे ना चले जाते हैं जहाँ पे या सोचते हैं कि अच्छा जीवन जी सकते हैं And where they think that it is fine to live a life like that. और उन परिवारों को तोड़ा जाता है And families are broken. और सफर करता है वो परिवार कई बार And that family suffers. ना। जरूरी है कि परमेश्वर की योजना में हम हैं And since we are in God's plan, एक संपूर्ण परिवार है it should be a complete ना, family जहाँ पे एक दूसरे के साथ हम चलते हैं where we walk together with each other. ना। संबंध तभी ठीक होता है Then only this relationship is जब वो good. वचनों के आधार पे होता है When it's based on the word of ना, God. जब वो प्रार्थना के आधार पे होता When है it is based on prayer. और वो परिवार वैसे आगे बढ़ता है। And then the family moves ahead. पहले परिवार ऑटोमेटिकली आगे नहीं बढ़ेगा It doesn't move automatically. ना। उत्पत्ति का 2:25 If we go to Genesis 2:15, ना बात पे बोलता है आदम और हव्वा दोनों, राइट, क्या है उसकी पत्नी दोनों क्या है लजाते नहीं थे, and they were naked and they were not ashamed of each वो other. दोनों एक है And they were one. ना। प्रभु जैसा उन्हें बनाया है And the way God made them. ना। पहला कारण हव्वा, राइट, पहला कारण जो हव्वा को बनाया परमेश्वर ने, And the first reason why God made Eve was, क्या बोला परमेश्वर ने? what did he say? मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा And I will make a mate suitable or a helper suitable for Adam. ना। आदम ने सब जानवरों के नाम रखे Adam named all the animals, ना, लेकिन वो अपने साथी के लिए कोई नाम नहीं रख पा रहा है but he was not able to ना। name सबका his ना mate. सब जन है, राइट, And all of them were there. लेकिन मेरे लिए कौन है? But who is there for me? और परमेश्वर ने क्या बोला? But what did God say? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। That it is not good for Adam to be alone. मतलब क्या है? What does it mean? एक दोस्त, एक मित्र बनाया उसको। सहायक का मतलब क्या है? वहां पे एक बोल सकते हैं कि मित्र देता है वो So a helper here means a friend. ना। दूसरा Second, वहां पे वो मददगार बनाया। हेल्पर का मतलब, सहायक का मतलब है मददगार दिया है। and someone who will support and help the person. वो सही साथी जो उस परिवार को पूर्ण करेगा And the right person who will complete ना। the family. पति के लिए पत्नी कोई नौकरानी नहीं बनाया है, And he didn't make a wife a maid to her husband. लेकिन किस लिए बनाया? But why did he make? ताकि एक कमजोर पड़ जाए दूसरा क्या करेगा? उसके साथ लेकर चलेगा So if one becomes weak, the other person will support and walk along with ना। that person. उदाहरण के लिए अगर एक घोड़ा क्या है 500 किलो वजन क्या है खींचता है, And if, for example, if a horse can pull around 500 kilos, तो दो कितने खींचेंगे? so if there are two horses, how much can they actually carry? कितने खींचेंगे Pull. ना? 1500, उससे कहीं ज्यादा। So they will pull more than अगर 1000, एक 500 1500. केजी खींच रहा है तो दोनों और खींच, राइट, और ज्यादा वजन खींच सकते हैं If one can pull 500, two can pull ना। 1500. जो परिणाम है वो बड़ा होगा So the result will be big. ना। दो ताकतें जब एक हो जाती है तो परिणाम भी वैसा ही पैदा होता है When two strengths come together, the result is similar. ना। तो क्या है, दो ताकतें क्या बोलते हैं ना, झगड़ते हैं तो परिणाम भी और बड़ा हो जाता है And if they oppose each other, those two powers, ना। then वो even a bigger मुझे result is जोक there. कहने नहीं आता, मतलब मेरे को याद आता है तो मैं बोल देता हूँ कई बार Yeah. आप लोग को पता रहेगा तो हंस सकते हैं। वो लड़का जो बोलता है, मुझे पता चला अभी कि वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ। So I just remember this joke that a boy said that I now know when did the World War start. ना जब घर में उसने माता पिता को लड़ते देखा When he saw his parents fighting at home.
सीजीजे कई बार तीसरा बात The third thing, बातचीत करने के लिए राइट एक कम्युनिकेटर होना जरूरी है and to talk to each other and to communicate ना to each एक other. दूसरे के साथ बात करना जरूरी है It is so important to talk to each other. ना मैंने किसका शादी में प्रभुदास का शादी में गाना बनाया था हमने So we had made a song in Prabhu Das's wedding, ना हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है that bone of my bones and flesh of my flesh. वो मेरे हड्डी में से निकली नारी उसका नाम है She came, सॉन्ग बनाया she came out of my bone and woman is her name. ना उस टाइम पे मैं मैसेज ये कर रहा था ये लोग गाना गा रहे थे अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे उस So टाइम पे I- मेरे को वो चीज मतलब सोचा चलो इस पे गाना बना देते So while they were practicing out, I made this song. कभी कभी मेरे को एक लाइन सुस्ती है तो वो बना देता हूँ So if I get a line, I make a song out of मेरी it. हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है So she is bone of my bones and flesh of my flesh. लेकिन बाद में क्या होता है But what तूने happens इसको later? दिया है इसके लिए मैं खा लिया है। But later on, what happens that because you gave her to me, I am लेकिन defeated. क्या कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है So communication is so क्योंकि important. वहां पे कम्युनिकेशन नहीं था इसलिए वो पाप में गिर गए Because they didn't talk to each other and communicate each जब other, शैतान they fell into उस sin. आदन की वाटिका में आया When Satan entered into the ना garden वहां of पे Eden, कम्युनिकेशन नहीं हुआ था there was no communication इस there. वजह से वो पाप क्या है पाप ने प्रवेश किया And that is why sin could enter there. ना वहां पे आदम भी था And Adam was also there. ना वहां पे मतलब बाद में बोलते हैं ना बहुत अच्छा फल है And he says that it's a beautiful fruit. लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहा था And did God not tell? ना कई बार कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है परिवार में It is so important to communicate ताकि हम सही in the चीजों family. को सही तरीके से परिवार में कर सके और इस परिवार को आगे बढ़ा सके So that we'll be able to do the right things in the right way and move the family ahead. ना चौथा चीज And the fourth thing, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भाई क्यों सहायक दिया परिवार को आगे बढ़ाने के लिए and why was this helper given? To move the family ना ahead. 2 से 4 4 से 6 राइट So 4 out of 2 and more than that, ना out of एक 4. एक ना भाई ब्लेसिंग्स है वो आशीष है फूलो फलो And- और पृथ्वी में फैल जाओ And that is what, that prosper and multiply उत्पत्ति and का spread on एक this 28 earth. And if we go to Genesis ना वहाँ पे 1:28, लिखा है by the way and it says here ना एक दूसरे के बिना वो अधूरे है that they are incomplete without each कोई other. कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है And no one is higher or the other lower. कोई किसी की तुलना नहीं करता है And there is no comparison, ना, वो competition. अलग होते हुए भी एक है And they are different and yet they are one. वो अलग सोच के होते हुए भी एक सोच के साथ परमेश्वर यीशु मसीह में चल सकते हैं And despite having different thoughts, they can walk together in Jesus Christ, ना in unity. परमेश्वर ने आदम को वैसे ही बनाया है Because God made Adam in such a आदम way. को ना परिवार की देखभाल और उसकी रक्षा करने के लिए बनाया है And He made Adam to look after the family and protect it. और स्त्री को राइट उसकी मदद करने के लिए बनाया है And the woman was made to help him. ना पहला पत्रस का 3रा अध्याय 7वीं पंक्ति If we go to 1 Peter 3, 7th verse, ना जहाँ पे वो परमेश्वर कहता है where God says, ना पत्नियों के साथ ऐसा व्यवहार करो क्योंकि वो निर्बल पात्र है because you have to behave in a certain manner with your ना wives बोलता है, because they बुद्धिमानी are के साथ व्यवहार करो उनके साथ delicate vessels. ना बुद्धिमानी क्या है And what is this understanding or wisdom? जहाँ पे मैं परमेश्वर से उस बुद्धिमानी को लेता और परिवार को चलाने के लिए मदद मांगता Where I take the wisdom from God and work it in my, apply it in my family. उसको निर्बल पात्र जानकर उसका आदर सम्मान करो And respect her, understanding that she is a weak vessel. आगे क्या लिखा है And what is written ahead? कहीं तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए Otherwise your prayers may be blocked. अगर आदर नहीं कर रहे हो If you are not अगर respecting, अगर प्रेम नहीं दिखा रहे हो if प्रेम you are नहीं not कर रहे showing love, हो तो प्रार्थनाएं क्या होंगी so what will happen to your prayers? कैसे परमेश्वर सुनेगा How will God how will God listen जब आप पत्नी की नहीं सुनते हो if you are not listening to your own wife? कैसे परमेश्वर सुनेगा How will God listen to you जब उसके साथ प्रेम नहीं दिखा रहे हो when you are not showing any love to her? ना परमेश्वर अगर क्या बोलते हैं माता पिता अपने बच्चों के सामने रहते हैं और बच्चे कुछ गड़बड़ करते हैं और बेटा आ जाता है पिता के पास
And if sometimes children fight and the son comes to the father, ना मतलब पति पत्नी अगर झगड़ा कर रहे हैं और उसके माता पिता, बेटे के माता पिता उसके सामने ही है, and if husband and wife are fighting पता and the groom's father or क्योंकि parents are बेटा there, जिम्मेदार है, because the son is responsible, तो कैसे पिता उसकी सुनेगा? how will the father listen to बोला, him? पहले तुम जाके पहले पत्नी के साथ अपना ना सही संबंध स्थापित करो। First go and reconcile with your wife. ना वो सुनेगा ही नहीं, He will not listen कैसे only. परमेश्वर सुनेगा? So how will God listen ना उस प्रार्थनाओं को, in those prayers? वो नाजुक है, by the way, निर्बल पात्र कहा गया वहाँ पे। And God has called her weaker vessel. ना पास्टर काल ने एक बार वो उदाहरण दिया था, इसी मैं हर बार याद करता हूँ उनको, And Pastor Carl had given this example once, क्योंकि मेरा साल्वेशन का वर्ष ही ये था because it was the verse which gave me कि salvation, परमेश्वर हमें वैसे प्रेम करता है, हमें निर्बल पात्र समझकर। that God loves us understanding or knowing that we are weaker vessels, हमारी केयर करता है, हमारी चिंता करता है and He is concerned for us and He cares for us, ना, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदार ठहराया because God made Adam ताकि वो responsible, हवा के साथ उस प्रेम के साथ चले और इस परिवार को आगे बढ़ाए अपने। so that He will move ahead with Eve and make this family stable. ना मजबूत और राइट निर्बल बोल सकते हैं जिसे, So we can say strong and weak, लेकिन दोनों अलग अलग इससे हैं। but both are different ना parts. स्त्रियों के अंदर 25% है तो राइट पुरुषों के अंदर 40% है। So it may be 25% in women and 40%. मांसपेशियां बोलते हैं ना, जो स्ट्रक्चर है अलग है। So their दोनों का। structures are also ना different. दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, They don't have the same structure. ना एक कमजोर दिखता है लेकिन कमजोर नहीं है। And one looks weak but is हम not सोचे weak. अरे स्त्री निर्बल है ना, कमजोर है, And we can say that the woman is weak, लेकिन उसके अंदर वो जो ह्यूमैनिटी है, जो प्रतिकारक क्षमता है वो ज्यादा है। but she has a very strong रोग प्रतिकार ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, okay, immunity. रोग Okay. प्रतिकारक Yeah, क्षमता। but she has much stronger immunity. ह्यूमैनिटी पावर उसके अंदर ज्यादा है She has a very strong immunity. ना, सहनशीलता ज्यादा है वैसे, And she has a lot of patience. ना मर्दों से ज्यादा, ना पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की सहनशीलता ज्यादा है They are more patient, more than men. ना, क्योंकि वो कई साल ना एक पति के साथ सफर करती है, जाती है And because she has been journeying with her husband for a long, long ना, time, उसके पीछे चल रही है, and she's walking behind him, उसका following ध्यान him, रखो, and so keep or care for her उसके प्रेम करो उससे and love her. ना, क्योंकि वो कमजोर है लेकिन क्या है, क्या बोल सकते हैं उसको, कमजोर है लेकिन क्या है, उस क्या बोलते हैं वो बहुत स्ट्रांग है अंदर So से though she is weak, but inside she's a very ना, strong वो person. अंदर से बहुत स्ट्रांग है She is very strong from inside. ना। वैसे आदमी को बोलो बर्तन करो, कपड़े धो, लादी पोछो घर में If you tell a man to do the dishes, clean the house, ना, हम सिर्फ खाना बनाएंगे थक जाएंगे, and we can just make, खाना बनाएंगे बर्तन सारे पहले हुए हैं even when we Kitchen make पे। food, the kitchen is all scattered. मेरा वाइफ मुझे किचन नहीं देती अभी, That's why she never gives. My आप wife मत doesn't जाओ give- किचन में And she says, you don't enter the kitchen. ना, 15 मिनट का काम करोगे मुझे आधा घंटा देना पड़ेगा And you will work for 15 minutes and I'll have to put in 30 minutes for ना, that. बिखेर के रख देते हैं पूरा Because you scatter everything around. ना, हम सब पुरुषों का वही एक स्टोरी है, All of us have the same लेकिन this क्या thing. है वो सारी चीजें करती है But she does so many ना, वो things. निर्बल है लेकिन क्या है, हाँ पहले निर्बल है लेकिन क्या है अंदर से स्ट्रांग है, उसको परमेश्वर ने वैसा बनाया है, And she looks weak, but she is very strong inside. वो सह सकती है, And she has a lot of उसके अंदर patience ज्यादा क्षमता है and long suffering. ना, And वैसे she ज्यादा has, क्षमता है। and a lot of capacity is there in her. किसी को पति पत्नी को उदाहरण चाहिए, देखना There's- है, एग्जाम्पल देखना है, आप भी कर सकते हैं अभी सभा के बाद So जा सकते even हैं। if you want to see an example after ना। this assembly, you can do this. ना शॉपिंग करने के लिए लेके जाओ पति पत्नी, Go for shopping. किसकी क्षमता ज्यादा है पता चल जाएगा You will know who has a better capacity. ना, हमारा खत्म हो जाता है, अरे, कब खत्म होएगा इसका रे So our capacity gets over very soon. ना, ना,
आदम को वैसे बनाया है और स्त्री को वैसे बनाया है। So God has made Adam like that and he has made a woman this way. पुरुष उस संबंध के बारे में अलग है Man is different about this relationship. ना, कैसे सोचता है आदम, How does जो Adam think? पुरुष है कैसे सोचता है, So a man, how does घर a के man लिए think? कितना राइट कैसे काम करना है, कितना खर्चा लगेगा, ये सारी चीजें वो सोचता है। And he thinks about running the house and the expenses and everything. गाड़ी सर्विसिंग को देना है And I have to give the vehicle for servicing. ना, सारी चीजें ना, बाहर की सोचता है। He thinks about things which have to be done outside. पत्नी क्या सोचती है, What does the woman think? पति को कैसे खुश रखे। That how should I make or उसका please एक my ही गोल husband? रहता है, मैं पति को कैसे खुश रखूं। How do I keep my husband pleased or keep him happy? राइट, श्रेष्ठ गीत आपने पढ़ा होगा You must have read Song of Solomon. ना, जहाँ पे आप देखिएगा स्त्री क्या है, बहुत अद्भुत तरीके से प्रेम की बात करती है, साथ चलने की बात कर रही है। And here the woman talks about walking together and about love. लेकिन पुरुष क्या करता है वहाँ पे, मतलब उसके बारे में जिक्र है, उसकी आंखों की बात करता है, उसके सुंदरता की बात करता है। But the man is talking about her beauty, about her eyes. लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है And both have different और structures. दोनों को वैसे बनाया है गॉड ने And God has made them like that only. ना। जो स्त्री बोलते है चलो मेरा हाथ पकड़ के रास्ते में, And if you walk together ना, कैसे holding चलेगा? hands, how will he walk? चलेगा तो थोड़ा थोड़ा बाद में फिर छूट जाता है So after a while he has to leave her hand. ना। शादी से पहले या चलो साथ में चलो चलते हैं, राइट। Before marriage it's okay, let's walk together. लेकिन शादी के बाद क्या है, But after marriage what happens? पत्नी पीछे और पति आगे है The wife is somewhere behind and the man is right ahead. ना। शादी के बाद बहुत चीजें बदल जाती So है, many things change after लेकिन marriage. उसे संभाले रखना जरूरी है। जिम्मेदार आदम को बनाया है And to keep it or to maintain it, Adam has been made और एक responsible. दूसरे को समय देना And to give time to each other. ना, एक दूसरे का समय देना And to give time to each other. ना, ताकि वो पूरा कर सके उस परिवार। So that they can complete the family. And God does those things. चेक ओके। सो वैसे चीजें परमेश्वर करता है So God does those और things. परमेश्वर वैसे बनाया है। And He has made us कल like हमारा that. पास्टर्स मीटिंग था, Yesterday we had pastors बहुत meeting. अद्भुत हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ पे We really enjoyed a lot. और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने शेयर की। And we shared a lot of things there. लेकिन घर पे आने के बाद But after I came home, मेरा वाइफ ने पूछा my wife asked me, कैसा था, how was it? मतलब ठीक था, अच्छा था I said it was okay, it was ना, nice. उतना ही दो शब्द बोल दिए, अच्छा था, अच्छा लगा, सब चीजें हम लोगों ने की, उतना ही बोल दिया। So I could just say that it was nice, we liked it and it was good. लेकिन जब उसको पूछता हूँ कैसा था तो पूरा डिटेल में बता देती है But when I ask her, she gives me all the details. ना। कब खत्म होएगा अभी So when would it end? मेरी पत्नी नहीं है आज यहाँ पे या ग्रेट ना। पास्टर टाइम में भी वही बोला था, पास्टर्स बोल रहे थे पिकनिक भी जाना है, And pastor was telling that we have to go to picnic. लेकिन बोल रहे पहले परिवार से पूछ के आओ But ask your family first. ना, जहाँ पे वो हमको छोड़ना चाहिए, राइट, उस जगह Because पे। they should release us. बहुत सारी चीजें होती है ना, उसके पास वर्ड्स ज्यादा है, हमारे पास वर्ड्स कम है So she has a lot of words, but we have a fewer ना। words. समय देना बहुत जरूरी है, So to give time to each other is very सुनना important. बहुत जरूरी है To listen also is very ना। important. समय दो, So give time, प्रेम करो, love, उसकी सुनो, listen to her, उस भावनाओं को समझो and understand those feelings. ना। जहाँ पे उस वचनों के बीच में उसे लेकर आना बहुत जरूरी है। And to bring her in the verses is so important. जब उसको समझने लगोगे, When you will start understanding सुनने her, लगोगे, you'll start listening to समय her, दोगे, will start giving time. सब स से है All are S's. ना। सब In इंग्लिश Hindi. में बनाते हैं, मैं हिंदी में बनाता हूँ हमेशा। So in Hindi we can see these are ना, three सब S's. स से, राइट। समय दो, So give time, सुनो listen, और उसको समझो, and understand. और तभी वो आगे बढ़ेगा And then the relationship will move ahead. ना। ना वो उसके लिए आदर की बात होगी And it will be an honor, ना। विवाह जो है आदर की बात समझी जाए because a marriage is considered to be honorable. ना। एक जो हमने हर टाइम बोलते हैं ना, पुरुष क्या है, पहल करता है, और स्त्री क्या है, उसको रिस्पॉन्ड करती So है we always say that the man is the initiator and the woman is a responder. ना। शादी के दिन वो रिंग
पहनना है, राइट So the rings are exchanged on the wedding day. ना। उस दिन ही सिर्फ आई लव यू बोलते हैं, So on that day, people say मैं only I तुमसे love you. प्रेम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। So they say that I love you. शादी के बाद And what happens after the marriage? वो वर्ड सुनाई नहीं देता, कम हो गया। So then that word is not heard लेकिन anymore. रोज कहो, So say this every क्योंकि day. वो वाव सिर्फ उस दिन के लिए नहीं है, Because those vows are not meant only for हर that दिन day. के लिए है। They are meant for ये every day. बिल्डिंग है, So a building is there. लेकिन अंदर खूबसूरती, राइट, घर होता है और उसके अंदर क्या है, तरह तरह की राइट चीजों से वो सजाया जाता है So a building is there, and then there would be a flat, and it will be decorated by different ना। kinds दोनों of things. जरूरी है And both are ना। important. आदमी मजबूत है और उस स्त्री क्या है, उस खूबसूरती का है सजावट है। So it's like the strength of that building is man, and the कहाँ पे? decoration is the woman. ना पहला पत्रस का तीसरा में ही है, राइट। First Peter 3, in the 3rd chapter only we will see. ना जहाँ पे वो सजावट की बात कर रहा है Where he talks about decoration, ना, दीनता और नम्रता की बात करता है परमेश्वर, and he talks about जो humility, स्त्रियों का गहना है and which is an ornament for women. ना। एक खूबसूरती है इस परिवार में। So there is a beauty in this family. और पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 31 भी, And 1 Corinthians 12th chapter and 31 बी पार्ट 31b. ना, जहाँ पे पौलुस बोलता है मैं तुम्हें एक उत्तम मार्ग बताता हूँ And I will tell you a magnificent or majestic way, ना, जो प्रेम का मार्ग है, and which is the way of love. वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया है। The love which God उसने कलीसिया के लिए जो प्रेम loved किया us with. ना, And he उस- loved the church with it. ना, उस क्रूस के द्वारा, And through that cross. और उस प्रेम ने कभी हार नहीं मानी। And that love never gives up. इसलिए वचन क्या कहता है 13वें अध्याय में, वो प्रेम कभी हारता नहीं है। And that is why it says that it never gives up. वो अनरीति नहीं चलता, वो झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता, लेकिन क्या वो सब बातें सह लेता है ना? And it understands everything and it tolerates everything. I have to get the verse, Pastor. 13वें अध्याय 13वां अध्याय, which 13वें अध्याय में पहले थर्ड वर्स है। and though I bestow all my goods to feed the poor, okay. हाँ। Love suffers Fourth long verse। and is kind. Love does not envy. Love does not बड़ाई नहीं parade करता, फूलता नहीं and है is not puffed up ना, जहाँ पे वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता। and is not. It does not rejoice in iniquity. एक खूबसूरत वर्ष है 7वीं पंक्ति में, And the 7th verse is beautiful. वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। Bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things. Love never fails. वो प्रेम सुनता है, But वो प्रेम सुनता है, and that love listens वो प्रेम बातचीत करता है, and it talks वो जब धीरज धरता है and it bears वो संगति से आनंदित होता है and is happy with the fellowship. और तब परमेश्वर की महिमा होती है। And then God is वो glorified. क्रूस का प्रेम उसने हमसे किया, And that love of cross is what God gave उस us. कलवरी से अपनी जान देकर, And on that Calvary by giving his और ये life. बताया कि मैंने तुमसे कैसा प्रेम किया And he showed us the kind of love he had for us, or he और has उसने for us. हमें इस कलीसिया में जोड़ दिया And he joined us to this church. ना। उस प्रेम के द्वारा हम उस विश्वास में आए And we came into that with this love. और हम उस अनंत जीवन के भागी बने। And today we are partakers of an eternal और life. वही जीवन आज परिवार में परमेश्वर चाहता है। And the same life God wants in families. आमीन, Amen. आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time. तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। And we glorify you, Lord. We praise you, Lord. ये तेरे प्रेम का मार्ग है जो तूने हमें दिया है। This is your way of love, O Lord, which you have given, O Lord. तूने हम सबके परिवारों को बनाया है। And you have made all our families. तूने पति और पत्नी को एक साथ एक संबंध में जोड़ा है। And you have joined a husband and a wife in a relationship. धन्यवाद करते हैं इस संबंध के लिए And we thank you for this relationship. और हर एक के परिवार में आपकी मौजूदगी वो आप चाहते हो And you want to be present in all the families, O Lord. और वो परिवार
हमेशा उस आनंद में, उस संतुष्टि का जीवन जी सके, so that the family could live in joy and satisfaction और उस संबंध को समझे जो संबंध आपने दिया है। and understand that relation which has been given by you. यदि कोई यहाँ पर है, If there is someone here वो चाहता है अपने अपने मन में वो विश्वास करना, and if he wants to believe in his heart, मैं आपको उस विश्वास के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। so I want to tell you something about that trust. वो ये है कि यीशु मसीह आपके और हमारे लिए इस दुनिया में आया, And I want to tell you that Jesus came into this world for me and for you. और वो क्रूस पे बलिदान हुआ, And he died on the cross. वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, He died and he was buried, and on the third day he rose again. और वो आज जीवित परमेश्वर है। And he is a living God. और जो कोई भी उस पे विश्वास करता And है anyone who believes in him वो नाश नहीं होगा, will not perish, वो आनंद जीवन पाएगा। but will get eternal life. यदि आप सुन रहे हो, If you are listening to वो this, चाहते हो अपने परिवार को उस संतुष्टि का और वो आनंद भरा जीवन देना, if you want to give that a life of joy and satisfaction to your family, तो आप यीशु मसीह को जिस दिन विश्वास करते हो, so the day you believe in Jesus Christ, उस दिन से वो आपके परिवार का अधिकारी बन जाता है, and then he becomes the ruler of your family, और वो परिवार में आपके जीवन में कार्य करता है। and he starts working in your family. केवल आपको ये करना है, You just have to do this one thing. यीशु मसीह पे विश्वास करना है, You just have to believe in Lord Jesus ये Christ. कहना And you need to say कि यीशु तू मेरे लिए आया, that Jesus, you came for me, उस क्रूस पे मेरे पापों के बदले में मारा गया, and you were killed on the cross on my behalf, और उस सारी चीज़ों को क्षमा कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दिया, and you have forgiven all my sins. और तेरे जी उठने पे मैं विश्वास करता हूँ, And I believe on your resurrection, और तू जीवित परमेश्वर है, and you are a living God. मैं विश्वास करता हूँ। I believe. यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। Jesus, I believe in you. यदि कोई सुन रहा है If someone is listening, तो आप ये विश्वास करें, so you believe this, आपका जीवन बदल जाएगा। your life will be changed. धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा, Thank you, God, for this time, O Lord. तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं And we praise you, we glorify you, Lord, इस वचनों को देने के लिए, for giving us these words. तेरा आदर सम्मान करते हैं And we honor you, O Lord. यीशु मसीह के नाम से, We pray in Jesus' name. आमेन Amen. आमेन आमेन। थैंक यू, आमेन। चेक किया। Let's all rise on our places. आइए अपने स्थान पे खड़े थे। I hope God spoke with you. मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें की रहेगी। So let's all give thanks to the Lord for all of you. The Lord has saved your life, and for those who are married, thank God that God has given you wife. Yeah, Amen. परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे उनके लिए, सबके लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन को बचाया। यस, और शादीशुदा लोगों के लिए है कि धन्यवाद दो कि प्रभु ने आपको अच्छी पत्नी दी है। यस, प्रूडेंट वाइफ, यू आर ब्लेस्ड। सो लेट्स ऑल सिंग दिस सॉन्ग, शुक्रिया। क्या दे सकता, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह,
दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सारे मिलके क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा यीशु। शुक्रिया शुक्रिया। हर एक सांसों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। सारे मिलके शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। अद्भुत है। इसके बाद क्लास होगा, है ना। समय नहीं है हमारे पास। सो ग्रेट। सो प्रार्थना करते हैं उसके पहले, है ना। पिता परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। तेरी पिता परमेश्वर उपस्थिति में अद्भुत पिता परमेश्वर सामर्थ है, और इन प्रार्थनाओं को करते हैं जो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर आपके पास वो कुछ सवाल लेकर आया होगा, कुछ पीड़ाएं, कुछ दर्द से आया होगा, कुछ चीज़ों को लेकर आया होगा प्रभु जी। आप उसे डील करो, आप उसे पिता परमेश्वर चंगाई दो उस सारी चीज़ों के बीच में, और आप पिता परमेश्वर उन बातों को पूरा करो जो उसके जीवन में आपकी योजना है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके पिता परमेश्वर सामर्थ के उस अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो अनुग्रह कार्य करता है उस संबंधों में प्रभु जी। यदि कोई उस संबंधों से पिता परमेश्वर संबंधों के बीच में जिसको जरूरत है प्रभु जी, आप उस संबंधों के बीच में आपकी चंगाई दो प्रभु जी, आपका प्रेम दो, आपका साथ दो प्रभु जी। जहाँ पे वो
प्रभु जी उस संबंध में आगे बढ़ सके, उस प्रेम में आगे बढ़ सके, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रभु जी आप उस परिवार की अगुवाई करना। हर एक को प्रभु हम आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु जी, और खास करके हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करो प्रभु जी, और उनके जीवन में फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करो, और उनके जीवन में प्रभु जी यदि कोई पिता परमेश्वर साथी की खोज कर रहा है उसको पिता परमेश्वर दो, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और आप पिता परमेश्वर उन सारे बातों को पूरा करो हर एक के जीवन में प्रभु जी। खास करके हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रकाश अंकल के लिए, उनकी चंगाई की मांग करते हैं कि आप पिता परमेश्वर सामर्थ का हाथ बढ़ाकर उन्हें छूना प्रभु जी, और आपकी चंगाई देना प्रभु जी उनके जीवन में। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु जी। अब मांगते पिता परमेश्वर जब वो घर पे आए प्रभु, उनके लिए वो मार्ग तैयार करना, उनके शरीर जीवन प्राण आत्मा को पिता परमेश्वर सामर्थ देना, बल देना, और उनको पिता परमेश्वर खड़ा करना प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। मांगते प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम मांगते हैं खास करके प्रभु जी आलोक सिंह के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रभु जी, कि आप चंगाई देना, आप पिता परमेश्वर उन्हें वो उस उद्धार के कार्य में आगे बढ़ाना प्रभु जी, मदद करना कि वो उद्धार पा सके प्रभु जी। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी। मांगते हैं पिता परमेश्वर, मांगते हैं पिता परमेश्वर तुलसी आंटी के लिए प्रभु जी, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई देना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते। शम्वेल अंकल को प्रार्थना करते प्रभु जी, जो उनके पिता परमेश्वर जीवन में पिता परमेश्वर कमजोरी है प्रभु जी, उसे दूर करो और उन्हें सामर्थ दो, और उन्हें हमेशा उस आनंद में बनाए रखो प्रभु जी, और आपकी महिमा उन्हें दो जिसके द्वारा प्रभु जी हमारी ये मांग है प्रभु जी। आपके सम्मुख रखते हैं इन सारी प्रार्थनाओं को, और आपने सुना है, और उस विश्वास से हम मांगते हैं प्रभु जी, और उस विश्वास से ग्रहण करते हैं धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। सो या सो ग्रेट। सो एक अनाउंसमेंट है ना, हरप्रीत और मधु करके हमारे कलीसिया में पहले आते थे, उनको प्रार्थना में रखिएगा। उसकी शादी होने जा रही है 20 तारीख को। हरप्रीत कई लोग जानते हैं उनको, हरप्रीत और मधु है ना, पंजाब में 20 तारीख को उनकी शादी है, तो उसके लिए प्रार्थना में रखिएगा और उनके परिवार को, है ना। सो हमारे बीच में भोसले परिवार है ना, उनका बेटी का भी शादी होने जा रहा है, पता है सबको। सो या ओके, जो मिशनरी है चर्च